Hello students, we have already discussed that what is factors of production and what are the main factors of it, that is land, labor, capital and entrepreneur. Moving on with land as one of the factor, the characteristics, that is free gift of nature. Land हमें free of cost ही मिला है. We haven't produced it and it can never be produced also. हम ना उसे increase कर सकते हैं, हम उसे ना decrease कर सकते हैं. So first and foremost is what? It is free gift of nature provided by God. Also limited in supply. Limited in supply मतलब obviously हम अगर हमारा कुछ एरिया है, 1 एकड़ ज़मीन है, तो क्या हम इस 1 एकड़ ज़मीन को 5 साल बाद 10 साल बाद बढ़ा सकते हैं? ऐसा हम नहीं कर सकते. So whatever the area is given on surface of earth, that is only limited. We cannot increase it, we cannot decrease it. That is limited in supply. Third is what? Primary factor of production. जाहिर सी बात है, चारों चीज़ों में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में सबसे पहला बेसिक क्या है? What is the basic element for producing a commodity? That is land. अब हम घर हवा में तो बनाएंगे नहीं, मशीनरी हवा में तो रखेंगे नहीं. We'll always require the basic element to produce the commodity is land. Fourth is what? Passive. Why passive? Passive means कि इनका रोल सिर्फ अगर वो प्राइमरी है तो उस पर वो ख़त्म नहीं हो जाता. दे itself cannot produce anything. अगर हमारे पास ज़मीन है, हमें खेती बाड़ी करनी है, हमें एक फैक्ट्री लगानी है, तो क्या सिर्फ ज़मीन से हम फैक्ट्री लगा लेंगे? We cannot. Until and unless we have labor on it, until and unless we have much capital to put on, we cannot produce the commodity. So that is why it is passive factor of production. Also permanent. ऐसा है नहीं कि आज मेरी ज़मीन है तो 10 साल बाद हमारी ज़मीन गायब हो जाएगी, संपत्ति हमारी उड़ जाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है. So that means that is permanent in nature. It is not dynamic, or it cannot change with the passage of time. Importantly is what? Immovable. Very obvious. We cannot shift our land from one place to another. ऐसा तो है नहीं कि आज अपना घर मिर्ज़ापुर में है या दिल्ली में है या कहीं भी है, and we are trying to shift from one place to another, तो it's just ऐसा तो नहीं उसको उठा के कहीं और लेके चल जाएंगे. So that is immovable. It cannot be transferred from one place to another. It varies in fertility, land, the soil. It has different, we have different types of soils. तो जैसे सॉइल है वैसी उसकी फर्टिलिटी है, तो जैसा जहाँ का ज़मीन हो वहाँ से वैसी वहाँ की फर्टिलिटी होगी टू प्रोड्यूस द क्रॉप. डिफर्स इन लोकेशन. राजस्थान में चले जाओ या फिर किसी नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चले जाएं या नॉर्थ में चले जाएं, तो वी विल हैव अ डिफरेंट लैंड, different soil type in different areas. So it differs in location. The area of land differs in location. Also the 9th point is land has many uses. ज़मीन है तो ज़मीन के कई सारे यूज़ हो सकते हैं. इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकता है. फॉर एनीथिंग वी कैन यूज़ इट. Now comes the functions and importance of land. Function, the first function is agricultural development. Okay, India has always been known for agricultural purpose. हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही एग्रीकल्चर रही है, और इस एग्रीकल्चर का बेस है लैंड. विदाउट लैंड देयर इज़ नो एग्रीकल्चरल process to be done in the economy. So that is the important function of land which develops the agricultural sector of any of the countries. Industrial development. With the passage of time, India also developed with many techniques, and so we had emerged into an industrial era जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप करके एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने की कोशिश करते हैं. एंड दिस कुड ओनली बी पॉसिबल विद द यूज़ ऑफ लैंड इन द कंट्री. फैक्ट्रीज़ को सेटअप करना, कैपिटल्स इन्वेस्ट करना, लेबर्स को लगाना, एंड
many other techniques, innovative ideas to implement on land for the industrial development is one of the most important function of land. Now comes the development of the means of transport and communication. ऑब्वियस है, इफ़ यू मतलब कि हम कोई भी सामान अगर आज प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोडक्शन का सप्लाई कैसे होगा सप्लाई? Obviously through the means of transport. And how that means of transport would work? They would only work on land provided to them. हम चल रहे हैं, हम बस से जा रहे हैं, हम कार से जा रहे हैं, हम कहीं से भी जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं, through which the lots of goods are being transferred. That is only done on the reliable source of land. Importance to man. To go from one place to another, we require the basic resource for us, that is land. Promotion of science and technology. कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए उसका जो मीडियम होता है, नेटवर्किंग होती है, दैट गोज़ विथ लैंड. क्योंकि जो हमारा बेस है, जिस बेस पे हम अपने टेक्निक्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हम ऑल्सो द लास्ट इज़ व्हाट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो टावर्स लगा रहे हैं, जो प्लेस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किस पर हैं? दैट इज़ टोटली ऑन लैंड. सो लैंड हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स. हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. वी शुडंट एक्सप्लॉइट इन एनी अदर वेज. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट? प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. प्रोडक्टिविटी मतलब होता है उसकी कैपेसिटी. क्या होता है उसकी कैपेसिटी? कि एक लैंड की प्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी है. सो बाय प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड वी मीन द कैपेसिटी ऑफ लैंड टू प्रोड्यूस अ क्रॉप. 1 एकड़ ज़मीन पे आखिर कितने आउटपुट हो रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. एंड ये किस पर डिपेंड करेगा? उस लैंड की क्वालिटी पे. कैसा लैंड है, वहाँ की सॉइल कैसी है, एंड मैनी अदर फैक्टर्स विच आर लाइक दिस फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड. द फर्स्ट वन इज़ व्हाट? नेचुरल फैक्टर्स. किसी भी वेदर सीजन के चेंज होने से हमारे सॉइल, हमारे लैंड को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. ओके, दैट इज़ वाई in summer season, why do farmers tend to have more number of suicides? Because of the infertility in the soil and because of the land which isn't giving them more output for their livelihood. The size of holdings. जितनी ज़्यादा साइज़ होगी, जितना ज़्यादा साइज़ होगा लैंड का, उतना ज़्यादा हम टेक्निक्स, बेटर ऑप्शंस है हमारे पास उस पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने के. जितने छोटे पीस ऑफ लैंड होंगे, हमें उस पर प्रोडक्शन करने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं. उस पर ज़्यादा टेक्निक्स हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन फैक्टर्स. इफ़ ह्यूमन एफर्ट आर इफ़ द एफर्ट हैज़ नॉट बीन टेकिंग वेरी केयरफुली, तो उस पर ज़्यादा हम इफ़ेक्टिव टेक्निक्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं. इम्प्रूवमेंट्स ऑन लैंड. The use of for agricultural purpose, the use of more organic materials or maintaining the soil fertility, that also affects the productivity of land. Location of land. हमारा land कहाँ है, किधर है, वहाँ की soil कैसी है. हर जगह की अलग अलग soil type होता है. So we need to take into consideration that for increasing the productivity of land, what kind of efforts we need to put for the better productivity. Sixth is what? Organization. अगर हमारे पास लैंड है, बिना लैंड के हम अपने लेबर कैपिटल को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते. सो द ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज इंश्योर्स दैट द लैंड लेबर कैपिटल आर बीन पुट इनटू अ वेरी good ratio so that more and more output and productivity could be seen. Ownership of land.
जो एंटरप्रेन्योर है, जिसका ज़मीन है खुद का, वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कहीं से भी ना रुके। उस प्रोडक्टिविटी को ना रोकने के लिए वो अपने लेबर्स को इंश्योर करता है कि वो ऑप्टिमम यूज़ कर सकें अपने एफर्ट का और उसकी प्रोडक्टिविटी को मेंटेन कर सकें। ऑल्सो द कैपिटल इन्वेस्टेड इन इट इन द फॉर्म ऑफ fertilizers, insecticides, pesticides for the better agricultural development that is being ensured by the owner. Availability of capital, बहुत कैपिटल है हमारे पास बट वी आर नॉट हैविंग सफिशेंट लैंड टू पुट ऑन इट, और इन द वाइस वर्सा कंडीशन वी हैव द सफिशेंट लैंड रिक्वायर्ड बट we don't have much resources to put on. So that ratio has to be maintained to have a better productivity. Proper use of land. It means what, कि अगर हमारी ज़मीन है किसी दूसरे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, या हमारी ज़मीन है राइस को ग्रो करने के लिए, विच इज़ मोर good to produce rice, and we are producing any other crop instead of it, so that won't give that productivity which rice could give on that land. Okay, तो लैंड पे हमारे कौन सा क्रॉप बेटर तरीके से ग्रो हो सकता है, लैंड पे हमारे कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकता है, ये फोकस करने की ज़रूरत है. ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज स्टेट हेल्प. State will always, in the underdeveloped countries, state will always help into produce more, to go into more agricultural research for the development of the country. वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा beneficial things उनको देंगे, so that they could increase their productivity and increase the economic development.